Good morning, students. In the last class, we have completed a chapter 10, that is market forms. So, in today's class, we are going to start a new chapter of your microeconomics, chapter 11, that is price determination. Okay. So, in this chapter, we are going to study the different topics. That is, first one is introduction of the price determination, which condition we will call that it is the price determination. Next topic is market equilibrium or the price determination. Okay, in which situation the market will be in equilibrium condition, or where the price will be determined. Okay. Next one is effect of the shift in the demand and supply on equilibrium price and quantity. Effect of change in demand on equilibrium price and quantity. Effect of change in the supply on equilibrium price and quantity. Sources or the factors of demand shift or the factors affecting the demand curve. Sources or the factor supply or factor affecting the supply curve. Next is effect of simultaneous demand and supply shift in the same direction when the demand or the supply curve will shift in the same direction. And the last one is effect of the simultaneous demand and supply shift in the opposite direction. Okay, जब क्या होगा, जो डिमांड एंड सप्लाई कर्व है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगा. मींस एक सप्लाई कर्व अगर वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो डिमांड कर्व क्या होगा, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. तो वी विल डिस्कस all these topic in this chapter, that is price determination. Okay, so let's start. The concept of demand and supply help us to understand the behavior of consumers and the producers. These helps to explain the behavior of buyer and the seller to determine the equilibrium in the market. A market consists of the three elements: demand, supply or the market equilibrium. So demand describe the behavior of the consumer in the market, supply describing the behavior of the firms in the market, and the market equilibrium connect demand and supply and describing how consumers and the producer interact in the market. कि मार्केट में कैसे जो डिमांड एंड सप्लाई है और कैसे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मार्केट में इंटरेक्ट करेंगे. So the concept of the demand and supply help us to determine the behavior of consumer and the producer. Okay, जो भी हमने concept पढ़ लिया कि what is demand, what is supply, what is the law of supply, what is law of demand, what are the different factors they affect the demand, or what are the different factors affecting the supply. So the concept demand and supply क्या करता है कि demand के through हम किसी भी कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करते हैं. मींस कंज्यूमर कौन सी कमोडिटी को कितना डिमांड कर रहा है, कौन सी कमोडिटी को वो ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, किस कमोडिटी को वो लाइक कर रहा है, किस कमोडिटी को वो डिसलाइक कर रहा है, किस कंडीशन पे वो कमोडिटी को ज़्यादा परचेस कर रहा है, कब प्राइस कम होगी तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा, जब प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड वो कम करेगा. यस, तो ऐसे कंडीशन में हम डिमांड के थ्रू ही हम जान जाते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर उस कंडीशन पे कैसा होगा. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सप्लाई, तो सप्लाई के थ्रू वी नो दी वेरी वेल द बिहेवियर ऑफ दिस प्रोड्यूसर. मींस कितनी कमोडिटी की कितनी वो सप्लाई करेगा, वो कितनी कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा, कौन सी कमोडिटी अभी कंज्यूमर ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, किस टाइप की कमोडिटी उनको ज़्यादा लाइक है, किस कमोडिटी को डिसलाइक कर रहे हैं, कितना उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करना चाहिए, अगर जिस प्रोडक्ट को वो डिसलाइक कर रहे हैं उसको कम प्रोड्यूस करना चाहिए और उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में शिफ्ट होना चाहिए जो कंज्यूमर ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर प्राइस ज़्यादा होगी, कोई भी कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा होगी तो सप्लाई भी उस कमोडिटी की ज़्यादा होगी. अगर उस कमोडिटी की प्राइस कम हो गई तो सप्लाई भी क्या होगी, उस कमोडिटी की कम होगी. क्योंकि अगर ज़्यादा प्राइस होगी तो प्रोड्यूसर को क्या होगा, प्रॉफिट होगा. अगर कम प्राइस होगी किसी भी कमोडिटी की तो प्रोड्यूसर को लॉस होगा. ओके, तो डिमांड और सप्लाई ही के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बिहेवियर किसी भी कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, वो कैसे किसी भी सिचुएशन पे एक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, एज वेल एज सप्लाई के थ्रू हम जान सकते हैं कि बिहेवियर ऑफ दिस प्रोड्यूसर, की प्रोड्यूसर का बिहेवियर
कैसा है. So these helps to explain the behavior of buyer and seller to determine the equilibrium in the market. ठीक है, इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिमांड और सप्लाई के थ्रू हम बिहेवियर ऑफ बायर और सेलर का जान सकते हैं कि टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम इन द मार्केट, कि बिहेवियर ऑफ बायर एंड सेलर डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम, किस कंडीशन पे इक्विलिब्रियम होगा. इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वल, कहाँ पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगा, मतलब जितनी कमोडिटी कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं उतना ही कमोडिटी सप्लायर सप्लाई कर रहा है. तो दिस विल बी द डिमांड इक्वल टू सप्लाई. वो कंडीशन होगी कि जितना डिमांड हो रही है एज अ कंज्यूमर, हम जितना डिमांड कर रहे हैं, एज अ सप्लायर उतना सप्लाई वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है, तो मार्केट में क्या है, 3 एलिमेंट कंसिस्ट होते हैं. मतलब कोई भी मार्केट है, कितनी कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, कब प्रोड्यूस करना है, कौन सी कमोडिटी को प्रोड्यूस कंज्यूमर ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं. तो ये सारे के लिए मार्केट में 3 एलिमेंट होते हैं, बेसिक 3 एलिमेंट्स होते हैं. उसमें फर्स्ट वन इज़ डिमांड. ठीक है, डिमांड डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट. डिमांड के थ्रू ही डिमांड ही डिटरमाइन करता है और डिस्क्राइब करता है कि बिहेवियर का कंज्यूमर कैसा है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कोई भी सप्लायर कमोडिटी को प्रोड्यूस और सप्लाई तब तक करेगा जब तक कमोडिटी की डिमांड हो रही है. इन केस वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है, सप्लायर का जो प्रोड्यूसर है वो कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, बट nobody is there to purchase that commodity. Is there any possibility that the supplier will produce the more commodity? No. कोई भी सप्लायर अगर एज अ कंज्यूमर कोई भी हम कमोडिटी परचेज़ नहीं कर रहे हैं, आप लोग देखते होंगे ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो उनको बहुत लॉस होता है क्योंकि पीपल विल नॉट डिमांड दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, तो वो क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं, शट डाउन हो जाती हैं, बिकॉज उनका इतना ज़्यादा लोग परचेज़ नहीं कर रहे हैं. तो यही कंडीशन होती है कि अगर एज अ कंज्यूमर हम कमोडिटी की डिमांड नहीं करेंगे तो सप्लायर कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस नहीं करेगा. ठीक है, इसीलिए कोई कंज्यूमर को ना एक गॉड की तरह लिया जाता है कि अगर कंज्यूमर है तभी कमोडिटी प्रोड्यूस होगी, नहीं तो कोई इसका मतलब ही नहीं है प्रोड्यूस करने का. ओके, तो इन दिस कंडीशन डिमांड डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इन द मार्केट. डिमांड ही क्या करता है, किसी भी कंज्यूमर का कैसा बिहेवियर होगा मार्केट में वो डिटरमाइन करता है कि कोई भी कंज्यूमर कैसे मार्केट में बिहेव कर रहा है, वो डिटरमाइन करता है थ्रू द डिमांड. सप्लाई डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द फर्म्स इन द मार्केट. सप्लाई क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि किसी भी फर्म्स का कैसा बिहेवियर है, कि कोई भी फर्म कितनी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रही है, कितनी कमोडिटी को वो सोल्ड आउट कर रही है, कि फर्म्स कैसे बिहेव कर रहे हैं मार्केट में, कि प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो वो सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं, प्राइस डिक्रीज़ हो रही है तो वो सप्लाई कम कर रहे हैं. तो दीज ऑल आर रिलेटेड टू दी बिहेवियर ऑफ द फर्म्स, कि फर्म्स का बिहेवियर ही डिपेंड करता है कि वही डिस्क्राइब करता है कि सप्लाई किसी भी कमोडिटी की कितनी होगी. नेक्स्ट वन इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम. तो मार्केट इक्विलिब्रियम कनेक्टिंग द डिमांड एंड सप्लाई. जो मार्केट का इक्विलिब्रियम वहीं पे होगा जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे. तो मार्केट इक्विलिब्रियम कनेक्टिंग द डिमांड एंड सप्लाई, दोनों डिमांड और सप्लाई को कनेक्ट करता है कि जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई होगी. ठीक है, वहीं पे जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट पे प्राइस भी डिटरमाइन होगी और उसी सिचुएशन पे क्वांटिटी भी डिटरमाइन होगी. ओके, सो डिस्क्राइबिंग हाउ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इंटरेक्ट इन द मार्केट. तो यही मार्केट इक्विलिब्रियम क्या करता है, वही डिटरमाइन करता है कि डिमांड एंड सप्लाई को कनेक्ट करता है और ये डिस्क्राइब करता है कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कैसे मार्केट में इंटरेक्ट करते हैं, मतलब मार्केट में वो दोनों कैसे इंटरेक्ट करते हैं. तो मार्केट इक्विलिब्रियम के थ्रू ही हम क्या जानते हैं कि कितना डिमांड और सप्लाई होगा. तो इस चैप्टर में पूरा हमको यही पढ़ना है कि कहाँ पे प्राइस डिटरमाइन होगा. प्राइस डिटरमाइन वहीं होगा जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पे प्राइस में भी समटाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ और डिक्रीज़. सो प्राइस टोटली डिपेंड अपॉन द मार्केट फोर्सेस, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई. जितनी डिमांड होगी और सप्लाई होगी उसी पे प्राइस क्या होगी, डिटरमाइन होगी. तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है. तो वी विल डिस्कस डिफरेंट काइंड ऑफ
डिफरेंट काइंड ऑफ डायग्राम हियर, कि हम लोग यहाँ पे बहुत टाइप्स के डायग्राम भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सिचुएशन क्या होती है। जब डिमांड इंक्रीज़ करता है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड डिक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ होगा तो वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, डिक्रीज़ होगा तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, सप्लाई डिक्रीज़ होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। तो कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा? अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो गई और डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई, तो जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर, ओके। So there is conflict in the aim of the seller and buyers. Seller want to sell the goods at the highest price to maximize profit, and the buyer want to buy the goods at the lowest price to maximize satisfaction. So therefore a compromise between the buyers and the sellers has to be determined with the help of the equilibrium price, okay. So there is conflict in the aim of seller and the buyer. फिर इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सेलर का एम है, सेलर का एम क्या है बताइए, आप ही बताएंगे। सेलर का एम क्या है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। सेलर का एम यही होता है, प्रोड्यूसर का मेन मोटिव यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करने का। और बायर का मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। हम जितनी भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, हम कितना ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। वो बेसिक जो सेटिस्फेक्शन है ना, उसी का ही क्या होता है, वो एम, मेन एम होता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि जो भी एम है दोनों का, कि प्रॉफिट अर्न करने का सप्लायर का और सेटिस्फेक्शन अर्न करने का बायर का, तो उन दोनों के एम में समटाइम्स क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। मीन्स वो लोग एक आपस में क्या है, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। वो सप्लायर कहेगा कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, अब जैसे ही वो बोलेगा प्रॉफिट अर्न करने का मतलब, तो प्रॉफिट अर्न करने का मतलब वो कैसे प्रॉफिट अर्न करेगा? जब वो प्राइस इंक्रीज़ करेगा। अब जब प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो कोई भी कंज्यूमर क्या कमोडिटी को कंज्यूम कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसके लिए वो कॉस्टली हो जाएगी। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, यही ऐसी वो सिचुएशन होगी जहाँ दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि दोनों का जो एम है। तो सेलर्स, अब बायर तो ये डिमांड करेगा कि नहीं, प्राइस कम होनी चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड विल बी द मोर। बट अगर जैसे ही प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, बट सप्लाई क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ कर जाएगी। तो अब सप्लायर को तो इस कंडीशन पे लॉस होने लगा। तो उन दोनों के जो एम है, डिमांड और सप्लाई का, मतलब जो भी बायर और सेलर का जो एम है, वहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। यहाँ पे दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। Seller want to sell the goods at the highest price to maximize profit, and the buyer want to buy the good at the lowest price to maximize satisfaction. Therefore, a compromise between the buyer and the seller has to be determined with the help of equilibrium price. अब इसमें ये कह रहा है कि जो सेलर है, सेलर क्या चाहेगा? सेलर want to sell the goods at the highest price. कोई भी सेलर यही वांट करता है, चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को सोल्ड आउट करे विद द हाईएस्ट प्राइस, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई यही कहती है, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज सप्लाई विल बी ऑल्सो द इंक्रीज, सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीजेज। सो सेलर क्या करेगा, वो कमोडिटी की प्राइस को इंक्रीज़ कर देगा। अब जैसे ही वो कमोडिटी की प्राइस को इंक्रीज़ करता है, तो कमोडिटी को जो परचेज़ करने वाला है बायर, वो क्या कमोडिटी को परचेज़ करेगा? वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट एबल टू परचेज़ द कमोडिटी विद दी मैक्सिमम प्राइस। सब लोग इतने कैपेबल नहीं हैं कि हर एक कमोडिटी को मैक्सिमम प्राइस पे भी क्या कर सके, उसको परचेज़ कर सके। इन दैट कंडीशन द सेलर वांट टू सेल द गुड्स एट द हाईएस्ट प्राइस। वो हाईएस्ट प्राइस पे उसको क्या करेगा कि सेलर सेल करेगा टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, क्योंकि मेन मोटिव क्या है, एम क्या है सेलर का, टू मैक्सिमाइज दी प्रॉफिट। एंड द बायर वांट टू बाय द गुड्स एट द लोएस्ट प्राइस। और बायर क्या वांट करेगा कि वो गुड्स को क्या करे, ज़्यादा परचेज करे एट द लोएस्ट प्राइस, कि वो ज़्यादा क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट देयर इज़ इनवर्स रिलेशन बिटवीन दी in the price and the quantity demanded. When the price increases, quantity demanded will be decreases, and when price decreases, quantity demanded will be increases. So buyers want to buy the goods at the lowest price. अब buyer क्या करेगा, उसको goods तो purchase करना है for maximizing his or her satisfaction, तो वो ये expect करेगा कि price क्या है commodity की, वो low हो जाए to maximize the satisfaction. उसके through वो अपनी satisfaction को maximize करेगा।
Therefore, a compromise between the buyer and the seller has to be determined with the help of the equilibrium price. फिर इस कंडीशन पे जो कॉम्प्रोमाइज़ बायर करेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ बायर भी करेगा, क्योंकि वो ये सोचेगा कि अगर मेरे को अभी क्या होता है जब कोई भी कमोडिटी हम लोग कोई भी देखते हैं, कोई वेजिटेबल्स हो गया या कुछ फूड ग्रेन्स हो गए, कुछ भी हो गया, अगर हमको उसको क्या करना है, कंजप्शन तो हम कभी रोक नहीं सकते हैं। देखिए, कंजप्शन किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी कमोडिटी का ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हम कभी खाना नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ भी कंडीशन हो जाए। ठीक है, आदमी 2 टाइम के खाना तो खाता ही है, चाहे जैसी भी कंडीशन हो। तो कंज्यूमर को क्या करना है, अपने इसको सेटिस्फेक्शन अर्न करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ तो वो सेक्रीफाइस करेगा। क्या होता है, कभी कभी कमोडिटी क्या हो जाती है, कभी वेजिटेबल्स क्या होती है, 100 पर केजी क्या हो जाता है, आपका टोमेटो हो जाता है। तो हम लोग को कंजप्शन करना ही है, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ½ kg लेते हैं, बट हम कंजप्शन कभी भी रोकते नहीं हैं कि अरे नहीं अब तो नहीं खाना खाएंगे, अब ऐसे ही ज़िंदा रहेंगे। तो इस टाइम क्या कर रहा है बायर, क्या कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है कि चलो क्या है कि ज़्यादा प्राइस दे के भी हम अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ कर लें। यहीं पे कंडीशन आती है अगर सेलर की। सेलर क्या करता है, अब सेलर को ये है कि वो ये सोचे कि मैं मैक्सिमम प्राइस कर दूँ, कमोडिटी की लोग परचेज़ ही करेंगे। बट सेलर को ये भी सोचना चाहिए कि अगर कोई कमोडिटी की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई तो कोई भी बायर क्या है, वो डिफरेंट कमोडिटी पे भी तो सब्स्टिट्यूट कर सकता है, वो किसी और कमोडिटी को, हो सकता है टोमेटो की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या करेगा कि ठीक है सब्ज़ी में हम टोमेटो नहीं डालेंगे, बिना उसके ही बना सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है ना। तो इस टाइम सेलर ये सोचेगा कि उसको भी एक कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि कम ही प्रॉफिट अर्न करे, बट कुछ तो प्रॉफिट अर्न करे, इसलिए वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा कि ठीक है चलो कम ही प्रॉफिट मिल रहा है, तभी हम कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं और इसको सोल्ड आउट करते हैं। इन दोनों कंडीशन पे क्या करते हैं, बायर एज वेल एज सेलर दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ वो दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। सेलर क्या कर रहा है, अपने प्रॉफिट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, बायर किसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, अपने सेटिस्फेक्शन के साथ। तो उनका जो इक्विलिब्रियम है, मतलब वो कहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गए, विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस के थ्रू क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम प्राइस के थ्रू वो क्या होगा, डिटरमाइन होगा। सो अ कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन द बायर एंड द सेलर हैज़ टू बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। फिर इक्विलिब्रियम प्राइस के थ्रू क्या होगा कि बायर और सेलर की क्या होगा, डिटरमाइंड होगा कि वो कहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे होंगे। तो ये कौन डिटरमाइन करेगा, प्राइस डिटरमाइन करेगा। एज आई टोल्ड हियर ना कि प्राइस क्या करेगा, बायर सोचेगा कि थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस दे दे, सेलर सोचेगा थोड़ा सा कम प्राइस में वो कमोडिटी को परचेज़ कर ले। तो इक्विलिब्रियम प्राइस के थ्रू ही ये दोनों बायर एंड सेलर क्या करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर अब पढ़ते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम और द प्राइस डिटर्मिनेशन। यहाँ पे क्या कंडीशन आती है, मार्केट इक्विलिब्रियम और द प्राइस डिटर्मिनेशन, कि कहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम होगा, कहाँ पे हम ये बोलेंगे कि जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है। ये कंडीशन एकदम इकोनॉमी की क्या होती है, एकदम बेस्ट कंडीशन होती है कि जितनी डिमांड हो रही है उतनी ही सप्लाई भी हो रही है। डैट मीन्स कि हम जितनी भी कमोडिटी को डिमांड कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पूरी होल इकॉनमी में हमारी डिमांड क्या है, 100 यूनिट डिमांड कर रहे हैं, मतलब कोई भी 100 यूनिट, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी कमोडिटी की, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी एप्पल ले रहे हैं, एप्पल की हम डिमांड कर रहे हैं कि पूरी इकॉनमी में लोग एप्पल की डिमांड कितना कर रहे हैं, 100 यूनिट कर रहे हैं, और सप्लाई भी कितनी हो रही है, 100 यूनिट हो रही है। तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया ना, कि जितनी डिमांड किए 100 लोगों को 100 एप्पल चाहिए था, तो अगर हम एक ले रहे हैं कि सैम्पल ले रहे हैं, मतलब कि टोटल ना लेके हम एक इकॉनमी में बात कर ले रहे हैं कि 100 पीपल हैं, 100 लोगों की डिमांड है, 100 लोग को एप्पल चाहिए, 100 लोग को एप्पल मिल भी जा रहा है, सप्लाई भी 100 की हो जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 100 यूनिट इक्वल टू 100 मीन्स डिमांड हमारी सप्लाई के इक्वल हो गई। ये हमारा क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब हम जितना डिमांड कर रहे हैं उतना सप्लाई हो जा रही है, वो होता है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन, मार्केट इक्विलिब्रियम। ओके, तो मार्केट इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटर्मिनेशन इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होते हैं, वेयर देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड द सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ के बायर्स और सेलर्स भी होते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, द
द सिचुएशन ऑफ द ज़ीरो एक्सेस डिमांड एंड ज़ीरो एक्सेस सप्लाई। अब आपको ये लग रहा होगा कि एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई क्या है, कुछ नया ही टर्म आ गया। वी विल डिस्कस इट, बट अभी आप उसके लिए टेंशन मत लो, मैं बताती हूँ क्या है ये एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई। पहले आप ये पढ़ लो, यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट इक्विलिब्रियम, इट इज़ अ डिफाइंड। अभी इस लाइन को आप थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है, आई विल डिस्कस इट। इट इज़ अ डिफाइंड एज द इक्वालिटी बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड एंड द क्वांटिटी सप्लाई। किसके लिए बोल रहा है, मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी डिमांड हो रही है वो किसके इक्वल है, क्वांटिटी सप्लाइड के। मतलब हम जितना डिमांड कर रहे हैं उतनी ही सप्लाई हो रही है। ये क्या होता है, इक्वालिटी। इन दोनों के बीच में अगर इक्वालिटी है, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द मार्केट इक्विलिब्रियम। सो दिस इक्वालिटी डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम प्राइस। यही इक्वालिटी जहाँ पे डिमांड सप्लाई के इक्वल हो जा रहा है, यही डिटरमाइन करता है कि कितना कमोडिटी की प्राइस होगी, ठीक है। अगर हम 100 यूनिट अगर हम 100 यूनिट कमोडिटी की डिमांड करें और 100 ही यूनिट क्या हो रही है, इसकी सप्लाई होगी, तो यहीं पे डिटरमाइन हो जाएगा कि जो एप्पल है वो 100 पर केजी होगा कि 50 पर केजी होगा कि 150 पर केजी होगा, ठीक है, यहीं पे डिटरमाइन होगा। सो दिस इक्वालिटी डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस। वो इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमाइन करेगा, दैट इज़ द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इज़ इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड। अभी आता है ये टर्म कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस होता क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होता है वो जहाँ पे जितना हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी सप्लाई हो जा रही है, ठीक है। सिंपल सा मतलब है कि एट द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इज़ इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड। जितना क्वांटिटी डिमांड किया उतनी ही क्वांटिटी सप्लाइड हो जा रही है जिस प्राइस पे। अब हम डिमांड करें, कोई भी कमोडिटी परचेज़ कर रहे हैं तो हम उसके लिए कुछ तो प्राइस दे रहे होंगे ना, फ्री तो ले नहीं रहे होंगे। और जितनी सप्लाई हम वो कोई भी सप्लायर कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, प्राइस के लिए, मनी के लिए तो कर रहा है। तो उस प्राइस पे जहाँ पे डिमांड जितनी है और जितनी सप्लाई है, उस वो जो प्राइस होगी, कुछ तो प्राइस पे कर रहे होंगे ना, उस प्राइस को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, यस, द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इज़ इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड। जितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है वो क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल है। एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, देयर इज़ नो प्रेशर ऑन प्राइस इधर इंक्रीज और डिक्रीज। अगर जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जा रहा है, जो कंडीशन पे अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे, वहाँ पे कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं होगा कि प्राइस को इंक्रीज़ करना चाहिए, प्राइस को डिक्रीज़ करना चाहिए, कोई भी वैसी वहाँ पे प्रेशर नहीं होगा। वहाँ पे क्या होगा कि अगर क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल है तो वो इक्विलिब्रियम प्राइस है, मतलब वहीं पे इक्वालिटी हो रही है। और उस कंडीशन पे कोई ऐसा प्राइस के साथ प्रेशर नहीं होगा कि हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, बहुत सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, अब क्या करना पड़ेगा, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई तो सप्लाई ज़्यादा होने से प्राइस को कम पड़ना पड़ेगा ना। क्योंकि इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे कि कोई भी प्रेशर नहीं होगा कि प्राइस इधर इंक्रीज़ करना है या प्राइस को डिक्रीज़ करना है। प्राइस उस कंडीशन पे क्या होगी, वो इक्वल होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट अप आता है कि इसका हम शेड्यूल देखते हैं कि क्या इसका शेड्यूल है कि थ्रू विच वी विल पुट ऑल दीज वैल्यू ऑन द डायग्राम। तो प्राइस अगर हम एक एक्स यूनिट की ले लेते हैं, कोई भी एक्स कमोडिटी आप कुछ भी ले लो, कोई भी वेजिटेबल ले लो या कोई भी प्रोडक्ट ले लो, राइस ले लो, वीट ले लो, तो प्राइस ऑफ एक्स इन पर यूनिट इज़ 10, 20, 30, 40, 50। ओके, प्राइस क्या क्या है, 10 है, 20 है। सी प्राइस इज हेयर इंक्रीजिंग and quantity is decreasing, 10, 8, 6, 4, 2. It is according to the law of demand. Law of demand says there is inverse relation between the price and the quantity demanded, that when the price of the commodity increases, quantity demanded will be decreases. Okay, and when we study the relation of the price and the quantity supplied, law of supply says that there is positive relation between the price and the quantity supplied. So when the price is increases like 10, 20, 30, 40, 50, the quantity supplied will also increases 2, 4, 6, 8, 10. Okay, so it is the positive relation between the price and the quantity supplied. So we will see here
when the price of the x, for example we have taken as here wheat, okay, प्राइस अगर 10 है किसी भी wheat की पर यूनिट, अगर हम प्राइस 10 रख रहे हैं, एक यूनिट प्रोड्यूस करने पे प्राइस 10 दे रहे हैं, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही है, 10 हो रही है, और सप्लाई कितनी हो रही है, डिमांड हम 10 कर रहे हैं और सप्लाई 2 की हो रही। क्या ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हुई, नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे डिमांड क्या है, 10 है, और सप्लाई क्या है, 2 है। So it is the not the situation of the equilibrium. Okay, next we will take when the price of the x price, here we will take the wheat, तो प्राइस अगर 10 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही है, wheat की 8 हो रही है, और सप्लाई कितनी हो रही है, 4 हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ, डिमांड हम यहाँ पे ज़्यादा कर रहे हैं और सप्लाई क्या हो रही है, वो कम हो रही है। ओके, नेक्स्ट इज 30, व्हेन द प्राइस इज 30, क्वांटिटी डिमांडेड इज 6, क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही है, 6 हो रही है, और सप्लाई भी 6 हो रही है। कैन वी से दैट इट इज़ द इक्विलिब्रियम कंडीशन और नॉट, बिकॉज जितना हम डिमांड कर रहे थे उतनी ही सप्लाई हो रही है, और प्राइस कितनी है, 30। तो इसी को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, कि जहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई, वेयर द डिमांड इक्वल टू सप्लाई, दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ द market equilibrium. Okay, we will say the equilibrium condition when the price of the x commodity is the 30 and quantity demanded is 6 and the quantity supplied is 6. So it is the situation of the equilibrium. So when the price increases from 30 to 40, the quantity demand is 4. देखिए अब आप लोग यहीं पे easily समझ सकते हैं डिमांड और सप्लाई की कंडीशन, कि प्राइस हमारी जैसे ही इंक्रीज़ होती जा रही है, डिमांड डिक्रीज़ होती जा रही है और सप्लाई इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस 40 हुई, क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 4 एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज़ 8। तो ये क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशन हुई, नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी जो सप्लाइड है वो 8 है एंड 8 इज़ ग्रेटर देन 4, 4 इज़ क्वांटिटी डिमांडेड। सो वी विल नॉट called it as the equilibrium condition. Equilibrium is that when the quantity demanded is equal to the quantity supplied. So when the price of the commodity is the 50, so quantity demanded is 2 and the quantity supplied is 10. So here what we will take, we see that the price is, when the price increases up to the 50, quantity demanded 2 रह गई, बस 2 ही क्वांटिटी डिमांड हो रही है। जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ होती जा रही है, प्राइस इंक्रीज़ होती जा रही है, क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जा रही है और क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज़ होती जा रही है, 10 हो गई। तो अब यहाँ पे 10 इज़ ग्रेटर देन 2। ओके, अब देखिए अभी हमने एक लाइन छोड़ा था ऊपर कि द सिचुएशन ऑफ ज़ीरो एक्सेस डिमांड एंड ज़ीरो एक्सेस सप्लाई डिफाइंस द मार्केट इक्विलिब्रियम, कि जो ज़ीरो एक्सेस डिमांड, जहाँ पे ज़ीरो एक्सेस डिमांड हो, कोई भी डिमांड ज़्यादा नहीं हो, कोई भी सप्लाई ज़्यादा नहीं हो, उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे देखिए टेबल में क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, 10 इज़ ग्रेटर देन 2, डैट मीन्स डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। और नेक्स्ट कंडीशन 2 पे देखिए, 20 यूनिट 20 प्राइस पे 8 इज़ ग्रेटर देन 4, हेयर ऑल्सो द क्वांटिटी डिमांडेड इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड। सो वी विल कॉल्ड इट एज एक्सेस डिमांड। एक्सेस मीन्स बहुत एक्सट्रीम डिमांड हो रही है, मीन्स प्राइस क्या है, प्राइस इंक्रीज़ कर रही है ना, और क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ कर रही है, बट क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, इंक्रीज़ कर रही है। बट प्राइस क्या है, क्वांटिटी डिमांड इज़ मोर देन द क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी यहाँ पे 10 हो रही है, तो सप्लाइड क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, 2, तो डिमांड इज़ मोर देन दी सप्लाई। सो दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड दी एक्सेस डिमांड। एंड नेक्स्ट वी कॉल्ड अबाउट दी एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई मीन्स जैसे जैसे प्राइस आपकी इंक्रीज़ कर रही है फ्रॉम 10, 20, 30, 40, 50, तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ कर रही है और क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज़ कर रही है। तो 40 प्राइस है तो डिमांड क्या हो गई है, 4, और सप्लाई क्या हो गई है, 8। तो सप्लाई क्या हो गई, ज़्यादा हो गई एज़ कंपेरिजन टू डिमांड। सो 8 इज़ मोर देन दी 4। व्हेन प्राइस इज़ 50, तो देखिए क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 2 है, क्वांटिटी सप्लाइड 10 है, तो 10 इज़ ग्रेटर देन 2। सो वी विल कॉल्ड इट एज एक्सेस सप्लाई। मीन्स सप्लाई प्राइस अगर इंक्रीज़ होगा तो बट ऑब्वियस है कि सप्लाई ज़्यादा ही होगी,
तो सप्लाई क्या हो गई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है, और डिमांड क्या हो गई, प्राइस इंक्रीज़ करी तो डिमांड कम हो जाएगी। इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। सो यहाँ पे एक लाइन थी, द सिचुएशन ऑफ ज़ीरो एक्सेस डिमांड, वो सिचुएशन जहाँ पे जो एक्सेस डिमांड है वो ज़ीरो है, मीन्स ज़ीरो के इक्वल है, वहाँ पे कोई भी एक्सेस डिमांड नहीं हो रहा है। एंड दी कंडीशन ऑफ द ज़ीरो एक्सेस सप्लाई, जहाँ पे कोई ज़ीरो एक्सेस सप्लाई है, सप्लाई भी ज़्यादा नहीं हो रही है, दैट डिफाइंस द मार्केट इक्विलिब्रियम, उसी को क्या बोलेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम। तो अब आप इस पूरे टेबल पे देखो कहाँ पे ज़ीरो एक्सेस डिमांड है और कहाँ पे ज़ीरो एक्सेस सप्लाई है। सो दिस इज़ द कंडीशन वेयर द क्वांटिटी demanded equal to quantity supplies, that is 6 equal to 6, and the price is 30. Okay, so it is the situation of the quantity market equilibrium. Okay, so it's all about your today's class. We will continue further in the next class. Okay, thank you.